please. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to HIV Echo launch by IHITC Islamabad. This session is in series of HIV Echo. It's in collaboration with a Medical Microbiology Infectious Disease Society of Pakistan, Apna Merit, Medical Education, Research, International Training and Transfer of Technology, and Common Management Unit TB, HIV, AIDS and Malaria. And it's supported by unrestricted and educational grant by SAMI Pharmaceutical Private Limited. Today's session is titled HIV in Pakistan, and our expert for today is Dr. Bushra Jameel with some alarming facts about Pakistan's situation. Before I introduce you to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself and for question or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in chat box. For CME credits of the upcoming sessions, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. Our expert, Dr. Bushra Jameel, is a leading consultant infectious disease, also served as Dean of Infectious Disease at College of Physicians and Surgeons of Pakistan, and Chief of Internal Medicine, Endocrinology and Infectious Disease at Aga Khan University and Hospital, Karachi. She is currently President of Medical Microbiology and Infectious Disease Society of Pakistan, also National Coordinator, Common Management Unit, TB, HIV, AIDS and Malaria, and CMO IHITC. So I would now like to hand over to Dr. Razia Fatma, who is also the facilitator for today's session. Dr. Thank Razia. You so much, Kiran. So Bismillahirrahmanirrahim. I think I will start from my introduction. I'm Dr. Razia Fatma, Chief Research and Surveillance at the Common Unit to Manage TB, AIDS and Malaria. And I'm part of the team with Dr. Bushra, and we are very pleased to have this second in series for our launch. So our first launch was just a day ago on Tuesday for TB Echo. And now this is our first introductory launch for HIV Echo. So this is actually a historic moment for all of us that this series of events will follow after that with the schedule on HIV topic. And I'm very thankful to all the collaborators, especially Dr. Kiran from Parsa Echo and Apna Merit and all the collaborators here. So before handing over to Dr. Bushra, I think there is a pre-test link which was shared in chat box. I would request everyone to kindly fill in the form so that we know, so this is just to facilitate the process. And just to know your answers. And then after Dr. Bushra's lecture, we will again have this post-test and we will analyze your responses. So this is just to see the success of this echo. So I would request every one of you to kindly fill in that form. We give around 3 to 4 minutes from now to fill in the form. Thank you.
आई होप लिंक सबके पास है, काइंडली फिल इन कर दीजिए सर्वे। अभी हमारे पास रिस्पॉन्सेज कम आ रहे हैं तो जस्ट 2 मिनट्स और देंगे। जी, काइंडली 45 पार्टिसिपेंट्स हैं ऑनलाइन, लेकिन अभी हमारे पास 11 रिस्पॉन्सेज आए हैं। काइंडली ये प्री टेस्ट फिल कर दीजिए। ओके जी, 1 मिनट। सो वी गिव जस्ट 1 more minute और हम 2:10 पे ये स्टार्ट कर लेंगे। जी, अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बुशरा जमील को कि वो आप सबको HIV के बारे में बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे परसों के सेशन में भी थे और कुछ नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने परसों का सेशन अटेंड नहीं किया था। सो मैं बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये वाले सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है।
So ECHO program is basically टेलीमेंटरिंग के टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहे साथ साथ, और एक अपॉर्चुनिटी हो डिफिकल्ट केसेस डिस्कस करने की। तो हम यहाँ से बैठ के, क्योंकि फेस टू फेस टीचिंग इतने सारे लोगों की हो नहीं सकती, और ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लोगों को रीच आउट कर सकें करें। हम सेशंस लेंगे ऑनलाइन। आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि ज्वाइन करें हमें। हमारा जो डायडैक्टिक जो सेशन है, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की बात कर लें, जो अपडेट्स हैं, जो नई गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस कर लें, और फिर आप लोगों के जो डिफिकल्ट केसेस हैं जो आप डिस्कस करना चाहें, जिसमें मशवरा लेना चाहें, वो फिर केस प्रेजेंटेशंस भी इन्हीं सेशंस का हिस्सा होंगी। सो आज का सेशन क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो मैंने ये सोचा कि एक ओवरव्यू ले लिया जाए ऑफ HIV सिचुएशन इन पाकिस्तान, और हम केस डिस्कशन आज नहीं करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। हमने अपने कोलैबोरेटर्स का नाम तो पहले अनाउंस कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की है टू मेक दिस सीरीज ऑफ सेशंस पॉसिबल। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं एक तो ओवरव्यू दूंगी आप लोगों को, आपको बताऊंगी कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी HIV प्रैक्टिशनर्स हैं, सो ये 2-वे लर्निंग का सिलसिला होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी मालूम है बीइंग क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स जो शायद हमको मालूम ना हो, तो ये 2-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। और थोड़ी सी बात हम कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में करेंगे, स्पेशली वो कंट्रोल स्ट्रेटजीज विच हैव नॉट वर्कड अप टिल नाउ। सो पाकिस्तान में HIV कैसे आया? शुरू के जो केसेस थे ये 1987 में रिपोर्ट हुए, और ये यूजुअली उन लोगों में होते थे जो मिडिल ईस्ट में काम करने की गरज से जाते थे, और फिर और वहां से उनको बीमारी की वजह से डिपोर्ट कर दिया जाता था। तो ये रिपैट्रिएटेड पाकिस्तानीज थे, लेकिन इसमें से चंद एक पाकिस्तानीज ऐसे भी थे जो वहां से इन्फेक्शन लेके आ गए, इसलिए कि वो यंग एज ग्रुप में थे और उन्होंने यहाँ पे शादियां करनी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हैजर्ड था ये पाकिस्तान के लिए, एंड दिस इज वे बैक इन 1987 ऑनवर्ड्स। जब ये रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान में HIV के केसेस आने शुरू हो रहे हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और उसके बाद ये पता चला प्रेवलेंस और दूसरे तरीकों से कि HIV की जो प्रेवलेंस है पाकिस्तान में वो चंद एक किस्म के ग्रुप्स के अंदर ज्यादा है, और ये जो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर प्रेवलेंस ज्यादा है उनको की पॉपुलेशन कहते हैं। और पाकिस्तान जो इनिशियल डेज में लो प्रेवलेंस हाई रिस्क एरिया समझा जाता था, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक में मूव हो चुका है, यानी कि प्रेवलेंस जो है 5% से ज्यादा है उन लोगों में जो की पॉपुलेशन तस्वुर किए जाते हैं। अच्छा, की पॉपुलेशंस हैं क्या? दरअसल की पॉपुलेशंस वो लोग हैं जो हु आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ HIV बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स। इनमें वो लोग हैं जो इंट्रावीनस ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेवलेंस पाकिस्तान में पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स उनमें है। इसके बाद उन लोगों में प्रेवलेंस हाई है जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, यानी हिजड़ा कहलाते हैं हमारी जबान में। फिर उसके बाद प्रेवलेंस हाई है उन लोगों में जो होमोसेक्सुअल हैं या मेन हु हैव सेक्स विद मेन, और फिर प्रेवलेंस है उन लोगों में जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं। ये शुरू के दिनों की बात थी, लेकिन अब भी प्रेवलेंस के ब्रेकडाउन इसी से मिलता जुलता है। सो 2018 में ग्लोबल एड्स रिपोर्ट के मुताबिक HIV इन्फेक्शन पाकिस्तान में जो था वो 57% इंक्रीज हो चुका था फ्रॉम 2010 टू 2018। तो 8 सालों में 57% इंक्रीज ओवरऑल HIV प्रेवलेंस में हुआ। और ये पता चला कि की पॉपुलेशंस के अलावा, यानी कि ड्रग यूजर्स, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स के अलावा, ये जो था ये आम लोगों में भी फैल रहा था, एंड दिस वाज थ्रू सेक्सुअल नेटवर्क्स एंड स्लो स्पिल ओवर इनटू जनरल पॉपुलेशन। तो प्राइमरीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड था बट नॉट सोलली, और ये हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ। सो IBBS जो है सर्वेज होते हैं, रिपीटेडली हुए हैं, उसके अंदर जो पता चला है कि किस ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है, वो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स,
followed by transgenders, followed by males who have sex with males, and then female sex workers. So ये key populations हैं जिस पे prevalence आपको दिखाई गई है, लेकिन ये भी 2016-2017 की prevalence है. फिर further breakdown अगर देखें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, so आप ये देखेंगे कि पिंक जो है वो डिनोट करता है men who have sex with men, और ग्रीन जो है वो ट्रांसजेंडर्स हैं. तो बहुत से पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये दो ग्रुप्स प्रीडोमिनेट करते हैं. कुछ एरियाज के अंदर ब्लू भी प्रीडोमिनेट कर रहा है. ब्लू इज इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स, IDUs या पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, PWIDs. ये वो कॉमन टर्म्स है जो आप एनकाउंटर करेंगे. और फीमेल सेक्स वर्कर्स जो हैं 1/4 से ज्यादा किसी भी एरिया में प्रीडोमिनेट नहीं कर रही. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इनका कंट्रीब्यूशन है टू स्प्रेड ऑफ HIV, बट उतना नहीं है जितना ट्रांसजेंडर्स, men who have sex with men और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स का. अच्छा, इसके अंदर जो ये है पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये नीडल्स और सिरिंजेस शेयर करते हैं. और आप अगर शहरों के हिसाब से देखिए कि किस इलाके में सबसे ज्यादा नीडल्स या सिरिंजेस शेयर हो रही थी 2016 और 2017 में, सो आप ये देखेंगे कि कसूर, हैदराबाद, नवाबशाह और बन्नू वो इलाके थे जहां 60% से ज्यादा फ्रीक्वेंटली नीडल्स और सिरिंजेस शेयर हो रही थी. इसके अलावा बाकी शहरों में भी सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन जो थी वो नीडल्स और सिरिंजेस शेयर कर रही थी. और इसके अंदर जो प्रोग्राम which is looking after this aspect is नई जिंदगी, जिन्होंने नीडल एंड सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है. बट ये प्रेवलेंस आपको 2016 और 17 की बताई गई है यहाँ पे. फिर ये जो पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स का सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर नहीं है, ये लोग पेड सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है विद बोथ फीमेल्स एंड मेल्स. तो अगर आप यहाँ देखें तो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स जो हैं वो हैदराबाद में फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, लाड़काना में मेल सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, और बन्नू, क्वेटा, तुर्बत, यहाँ भी इन इलाकों में और इवन कराची में सब्सटेंशियल इनका कांटेक्ट है विद सेक्स वर्कर्स ऑफ आइदर सेक्स. फिर मेल सेक्स वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ होमोसेक्सुअल्स नहीं हैं, वो शादीशुदा हैं और नॉर्मल जिंदगी भी गुजारते हैं. मानिए अगर ये किसी HIV इन्फेक्टेड शख्स से कांटेक्ट में आए, ये भी इन्फेक्ट हो जाएंगे और ये अपनी बीवियों को और घर में ले जाके इन्फेक्शन को फैलाने का सबब बनेंगे. सो आप यहाँ देखिए प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेल सेक्स वर्कर्स अच्छी खासी प्रोपोर्शन है. कराची में देखिए 1/3 और बन्नू और इसके अलावा और कुछ शहर है, फैसलाबाद, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कमर्शियल मेल सेक्स वर्कर्स आर मैरिड. सो इनकी वाइफ्स और दूसरे पार्टनर्स आर ऑल एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV. सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ men who have sex with men, उनकी इंटरैक्शन IV ड्रग यूजर्स के साथ, और फिर फर्दर उनकी इंटरैक्शन इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की फीमेल सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स के साथ. तो ये ग्रुप सारे इंटरलिंक्ड हैं और इनके ताल्लुकात जो है जनरल पॉपुलेशन से है. सो ये की पॉपुलेशंस हैं और इन लोगों के जो पार्टनर्स हैं और स्पाउसेस हैं वो ब्रिज पॉपुलेशन का किरदार अदा कर रहे हैं और फिर फर्दर स्प्रेड हो रहा है जनरल पॉपुलेशन में और ऐसे लोगों में जिनका कोई भी रिस्क नहीं है ऑफ एक्वायरिंग HIV. फिर हम HIV के कॉन्टेक्स्ट में बार बार एक टर्म एनकाउंटर करते हैं, आउटब्रेक. आउटब्रेक का क्या मतलब है? आउटब्रेक डिफाइंस रादर सडन अनएक्सपेक्टेड डिटेक्शन ऑफ क्लस्टर ऑफ केसेस. सो HIV के कॉन्टेक्स्ट में आपको बार बार ये टर्म मिलेगी, लेकिन लगता है ऐसा है कि प्रोबेबली ये जो आउटब्रेक्स हैं दे आर नॉट रियल आउटब्रेक्स, ये एंडेमिक्स हैं और उनकी रिकग्निशन क्योंकि एपिसोडिकली हो रही है तो वो ऐसा लगता है कि ये आउटब्रेक हो गई है कंट्री में. और इस फॉल्स इंप्रेशन की वजह से हम अपने एफर्ट्स उस तरीके से डिवोट नहीं कर रहे HIV पे जैसे करने चाहिए. सो ये पाकिस्तान का मैप है जहां आपको 3 रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं.
these have been identified as outbreak hotspots, यानी कि ये वो इलाके हैं जिनमें बार बार सब्सटैंशियल नंबर ऑफ केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, और इसमें गुजरात, सरगोदा और लाड़काना शामिल हैं। तो ये जो है ये आउटब्रेक हॉटस्पॉट्स डिफाइन किए गए और डिस्क्राइब और पब्लिश किए गए पाकिस्तान से। और सन 2000 से लेके 2019 तक अगर देखें तो कई आउटब्रेक्स हुए हैं, जिसमें 7 जो है नोटेबल आउटब्रेक्स हैं जिनको पब्लिश किया गया, जिसमें से 3 सिंध में और 4 पंजाब में थी, और 4 आउटब्रेक्स जो है 2016 से 2019 तक हुई हैं। और ये सारी की सारी इन्हीं हॉटस्पॉट्स पे हुई हैं या इनके इर्द गिर्द के एरियाज में हुई है। सो इस डायग्राम में आपको मेजर आउटब्रेक्स शो की गई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2003। लाड़काना में पहली मेजर आउटब्रेक नोट की गई जो कि आईवी ड्रग यूजर्स में थी, और इसके अंदर 175 लोगों को स्क्रीन किया गया था, ज्यादातर इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स थे। उसके बाद गुजरात की जो आउटब्रेक थी 2008 में, इसमें एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों आइडेंटिफाई किए गए थे। फिर दोबारा लाड़काना में आउटब्रेक हुई है 2016 की, इसके अंदर डायलिसिस पेशेंट्स थे, इसकी हम थोड़ी सी बात तफसील से करेंगे। फिर 2016 में ही चिन्योट पंजाब में आउटब्रेक हुई, इसमें भी बच्चा एक डिटेक्ट हुआ, एडल्ट्स भी डिटेक्ट हुए। फिर सरगोदा में, फिर डेरा गाजी खान, फिर अगेन सरगोदा एंड देन रत्तू डेरो। सो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जब बना तो उसके बाद उसके कुछ सालों के बाद 18th अमेंडमेंट की वजह से हेल्थ जो थी वो डिवॉल्व हो गई, और हमें क्लियर फेलियर नजर आता है कंटेनमेंट का, और कॉमन फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए बार बार इन वाली आउटब्रेक्स में। सो जो ये आउटब्रेक्स हुई हैं, तमाम आउटब्रेक्स में एक चीज जो आइडेंटिफाई हुई है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस की एब्सेंस या उनकी गलत इम्प्लीमेंटेशन है। और जनरली ये देखा गया कि 1/3 या उससे भी ज्यादा जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, दे रीयूज सिरिंजेस। जो प्लास्टिक सिरिंज होती है वो सिंगल यूज के लिए होती है, उसको किसी तरीके से भी ट्रीट किया जाए उसमें जरासीम और गंदगी रह जाती है क्योंकि वो सिंगल यूज आइटम है। और ये आइट्रोजेनिक ट्रांसमिशन है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी से लोगों को लगने वाली बीमारी साबित हो रही है HIV हमारे पास, क्योंकि अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। ये फैक्टर्स जो थे 7 में से कम 5 आउटब्रेक्स में आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें जलालपुर जट्टा, लाड़काना, कोट इमराना, रट्टू डेरो और फैसलाबाद की आउटब्रेक्स शामिल हैं। फिर 2019 के अंदर 3 आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुई है। तो 2019 should have been a turning point for us. This should have been a wake up call for us. लेकिन substantial measures बहुत फ्रेगमेंटेड तरीके से लिए गए हैं। इसके अंदर रत्तो डेरो वाली आउटब्रेक हुई, जिसमें आप में से बहुत से प्रैक्टिशनर्स ने खुद विटनेस की है वो, और उसका हिस्सा रहे हैं, और उसके कंट्रोल में भी पार्टिसिपेट किया आपने। सरगोदा में आउटब्रेक हुई और फैसलाबाद में हुई। लाड़काना और सरगोदा की आउटब्रेक्स पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और रीयूज ऑफ सिरिंजेस की वजह से थी। फैसलाबाद की आउटब्रेक वाज आल्सो बिकॉज ऑफ रीयूज ऑफ सिरिंजेस, बट प्राइमरीली इन पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। सो स्पिल ओवर हो रहा है, और पहला जो डॉक्यूमेंटेड सिचुएशन है HIV स्पिल ओवर की फ्रॉम हाई रिस्क टू जनरल पॉपुलेशन, ये सन 2008 में थी, जब ये पता चला कि अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं HIV के इन जलालपुर जट्टा पंजाब में। सो यहाँ पे किस तरीके से शुरू हुआ कि एक NGO ने स्क्रीन करने शुरू किए मरीज, या वो लोग जो टेस्ट करवाने के लिए विलिंग थे, और स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए गए जिनके अंदर काफी HIV इन्फेक्टेड लोग आइडेंटिफाई हुए। 35% ऑफ a total of 246 people were tested positive, और अगेन 96% लोगों में या तो अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से था या डेंटल प्रोसीजर्स की वजह से था। और एक और जो रिस्क फैक्टर इमर्ज हुआ HIV स्टडीज से भी और HCV स्टडीज में से भी, वो है विजिट्स टू बार्बर शॉप। तो जो हजाम रोड साइड पे होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स अनक्लीन होते हैं, और वो एक के बाद एक कस्टमर्स को शेव करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो है ब्लड से कंटेमिनेट हो जाते हैं, और वो लोग
HIV और HCV दोनों के स्प्रेड का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए थे वो एक्स्ट्रा मैरिटल या पेड सेक्स भी इंपॉर्टेंट था, बट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज वाज ड्यू टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ज्यादातर वर बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस, डेंटिस्ट्स या बार्बर्स। सो गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, ये जलालपुर जट्टा में जहां ये आउटब्रेक हुई थी, वहां पे केसेस अब भी हो रहे हैं। और यहाँ पे जब इसको क्लोजली एग्जामिन किया गया तो पता चला कि ये एंडेमिक है। और ये कैसे पता चला? क्योंकि जो वायरस वहां पे था उसकी एग्जामिनेशन की गई। सो अंदाजा ये होता है कि इट इज एक्चुअली एंडेमिक एंड इट वाज एंडेमिक देयर बिफोर रिकग्निशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटब्रेक। और वहां के रेजिडेंट्स जो हैं वो साइलेंटली HIV ट्रांसमिट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर इसी आउटब्रेक में ये पता चला कि आपकी की पॉपुलेशन ही नहीं है जो अफेक्ट हो रही है, इसमें खवातीन और बच्चे भी थे, और इसमें चंद एक बच्चे जो थे वो 10 साल से कम उम्र के थे। सो यहाँ पता चल गया था कि HIV जो है हाई रिस्क ग्रुप से अब जनरल पॉपुलेशन में शिफ्ट हो चुका है। और ये वही बात कि HIV को जब एग्जामिन किया वायरस को, तो इट वाज HIV-1 सब टाइप A जो कि एंडेमिकली ट्रांसमिट हो रहा था। इसके अलावा सरगोदा के इर्द गिर्द 50 गांव ऐसे हैं जिनको के जहां पे HIV की ट्रांसमिशन एक्टिवली हो रही है। और अगेन दिस इज बीइंग परपेचुएटेड बाय क्वैक्स, रीयूज ऑफ सिरिंजेस और अनसेफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस। अब हम आ जाते हैं लाड़काना पे। लाड़काना जो है केम इनटू पिक्चर इन 2003 जब इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के अंदर पहली आउटब्रेक पता चली थी। और ये क्यों है? सो 2005 से यहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है। 2003 में तो IV ड्रग यूजर से पता चला था, लेकिन 2005 से मालूम है कि कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के अंदर भी HIV मौजूद है। हालांकि इसकी प्रेवलेंस जो है HIV की कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के मुकाबले में कम है। और शुरू के ज़माने में ये नोट किया गया कि प्रोबेबली कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो है वो ड्राइव नहीं कर रहे इस डिजीज को, इस आउटब्रेक को, बल्कि इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के अंदर हो रहा है बिकॉज ऑफ शेयरिंग सिरिंजेस। लेकिन ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि HIV पॉजिटिव इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो हैं उनके कमर्शियल सेक्सुअल एनकाउंटर्स भी आम पॉपुलेशन की निस्बत ज्यादा हैं। सो इस वक्त राउंड 3 हुआ नेशनल सर्वेलेंस का, और इसमें पता चला कि जी नियरली 28% ट्रांसजेंडर्स या हिजरा सेक्स वर्कर्स भी HIV पॉजिटिव थे। ये सन 2008 की बात है। और फिर पेपर्स पब्लिश होना शुरू हुए और ये कहा गया कि एक छोटा सा टाउन है 500,000 पॉपुलेशन का जिसने कराची को सरपास कर लिया है इन हैजर्डस प्रैक्टिसेस। और ये जो था ये लेबल किया गया एज अ यूनिक टाउन क्योंकि यहाँ पे बड़ा अनयूजुअल पैटर्न है ऑफ मल्टीपल कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटीज। और यहाँ हो क्या रहा है, शहर के सेंटर में फंक्शनिंग ब्रोथल है जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं पूरे मुल्क से, फीमेल सेक्स वर्कर्स होती हैं, फिर होम बेस्ड सेक्स वर्कर्स भी होते हैं, फिर मुसाफिर खानाज हैं इन द मिडल ऑफ द सिटी जहाँ हिजरा एंड मेल सेक्स वर्कर्स आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सो वेरी बिजी कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये 2008 में रिकग्नाइज कर लिया गया था कि ये लाड़काना has all the ingredients of an exploding HIV epidemic in the near or distant future. This was 2008. आप यहाँ पे देखिए कि 2016-2017 में जो सर्वेलेंस की गई है तो आप ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स की एक्टिविटी अगर देखें based on average number of clients in the past 1 month before the surveillance. So आप लाड़काना को देखेंगे तो ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के 106 कॉन्टैक्ट्स थे in 1 month. So you can imagine the kind of risk this activity poses where transgenders are already HIV infected और 106 on average उनके clients हैं। इसके अलावा जो cities बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं with very high number of clients who visit transgenders,
उसमें सरगोदा और कसूर भी शामिल हैं और पेशावर एंड बन्नू. सो दीज आर हाई रिस्क एरियाज वेयर transgenders are maybe transmitting HIV to their clients. फिर 2004 के बाद वही बात हुई, बार बार ये रिमाइंड कराया गया कि लाड़काना माइट बी एट ब्रिंक ऑफ HIV आउटब्रेक इन लो रिस्क ग्रुप्स, और रिक्वेस्ट की गई कंसर्न स्टेक होल्डर्स से कि आप ये पैटर्न को देखें और इसके ऊपर क्लैंप डाउन करें ताकि जनरल पॉपुलेशन के अंदर स्पिल ओवर ना हो. फिर हम आ जाते हैं ब्लड बैंक्स की तरफ. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का क्या रोल है HIV स्प्रेड इन पाकिस्तान पे? सो दिसंबर 2014 में ये रिपोर्ट आई थी डॉन अखबार में कि कम से कम 10 बच्चे थैलेसीमिया के ऐसे हैं जिनको HIV हो गया allegedly after receiving contaminated blood. इसके बाद काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, ब्लड बैंक्स की स्क्रीनिंग वगैरह शुरू हुई, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने ये कंक्लूड किया कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द रिपोर्टेड एपिडेमिक. तो ये शायद लोकल इवेंट था और थैलेसीमिक बच्चों की स्क्रीनिंग भी की गई, लेकिन एक्चुअली इसकी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, तो हमें नहीं मालूम कि कितने थैलेसीमिक बच्चों को एक्चुअली HIV हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ contaminated blood transfusion. So this risk of getting HIV from transfusion is like a ticking time bomb. हमारा जो blood transfusion system है पाकिस्तान का वो weak है, fragmented है और mostly unregulated है. Unregulated अब probably नहीं रहा क्योंकि healthcare commissions के बनने के बाद blood transfusion systems को पे काफ़ी close नज़र रखी जा रही है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि काफ़ी blood banks ऐसे हैं जो unregulated चल रहे हैं, जो कि अनस्क्रीन ब्लड देते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए और HIV कंटिन्यूज टू बी ट्रांसमिटेड. सो बहुत हैवी बर्डन है ब्लड बैंक्स के ऊपर, और अगर इसको चेक नहीं किया गया तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूट है फॉर स्प्रेड ऑफ HIV. लाड़काना में भी दोबारा आ जाते हैं कि सन 2016 में क्या हुआ. 2016 में एक्चुअली सिविल हॉस्पिटल लाड़काना में डायलिसिस पेशेंट्स के अंदर स्क्रीनिंग पॉलिसी तब्दील की गई. एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई तो नई एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि जो भी मरीज यहाँ पे आते हैं उनको हेपेटाइटिस बी और सी के अलावा HIV के लिए भी स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि बार बार आते हैं, उनको ट्रांसफ्यूजन्स भी होते हैं, ज़ाहिर डायलिसिस के लिए नीडल्स भी स्टिक की जाती हैं. सो जब इनकी स्क्रीनिंग की गई तो पता चला कि 43% को HCV पॉजिटिव था, 29% ऑफ दिस पेशेंट्स वर HIV पॉजिटिव, 20% को HIV HCV दोनों पॉजिटिव था, और HBV का प्रेवलेंस कम था. सो यहाँ पे सवाल एक ये उठा कि ये जो है ये कंटेमिनेटेड या अनक्लीन डायलिसिस मशीन से मरीजों को स्प्रेड हो रहा है, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन्ड ब्लड की वजह से ये फैला है डायलिसिस पेशेंट्स में, या इसकी दोनों ही वजूहात हैं. सो इसके बाद काफ़ी एक्टिविटी की गई. ट्रांसफ्यूजन की जो बहुत सारे सेंटर्स थे उनको शट डाउन कर दिया गया, हेमोडायलिसिस सेंटर को बंद कर दिया गया, और ये समझा गया, ये अज्यूम किया गया कि हमने काफ़ी एक्शन कर लिया, और हॉस्पिटल के स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन की गई, और उसके बाद इलीगल ब्लड बैंक्स बंद किए गए जो थोड़े दिन के बाद खुल गए थे दोबारा. लेकिन हीमोडायलिसिस सेंटर काफ़ी दिन के लिए बंद कर दिया गया और मरीजों से कहा गया कि आप दूसरे सेंटर्स पे चले जाएं. सो देयर वाज नो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेफरल, और ये बेचारे HIV इन्फेक्टेड मरीज दूसरे सेंटर्स पे चले गए और जाके वहाँ की भी मशीनों को कंटामिनेट किया, और इन सेंटर्स पे कोई तरीका नहीं था ये स्क्रीन करने का कि जो पेशेंट्स उनके पास आ रहे हैं वो HIV पॉजिटिव हैं या नहीं है. तो इस तरह दूसरे सेंटर्स में भी मर्ज को फैला दिया गया. सो ये समझा गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मसला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी हीमोडायलिसिस सेंटर पे जो लोग काम करते थे उन पे, और बस ब्लड बैंक्स दोबारा खुल गए एंड बिजनेस एज यूजुअल. फिर हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ है. 3 स्ट्रेटेजिक प्लान्स बने हैं, उनका फोकस क्या रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम. 2001 में पहला स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना जिसकी वजह से एक रिस्पांस तरतीब दिया गया जिसको कहते हैं एनहांस्ड HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट. ये 2008 में कल्मिनेट होकर खत्म हो गया. फिर दूसरा नेशनल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज जो थी वो थी
इंटरवेंशंस इन की पॉपुलेशंस, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। और तीसरा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो था 2015 से 2020 तक, इसने फोकस किया ऑन क्वालिटी HIV ट्रीटमेंट एंड केयर सर्विसेज। सो टाइटल्स तो बहुत अच्छे हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत नोबल हैं, लेकिन इनके नताइज क्या निकले? दे आर नॉट विजिबल एक्चुअली एंड नॉट टेंजिबल और मेजरेबल। अब मेजर करने जाएंगे तो काफी खराब रिजल्ट्स आएंगे, मेरी असम्पशन है ये। 2011 के बाद जब हेल्थ डिवॉल्व हो गया, प्रोविंसेस से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे और वो ये प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे, स्पेशली फोकसिंग ऑन की पॉपुलेशंस, क्योंकि यहाँ से HIV का स्प्रेड शुरू हुआ है। कितना किया गया, कितना नहीं किया गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट प्रोविंसेस हैव लैग्ड बिहाइंड। सो स्क्रीनिंग जो है, हमारे पास जो HIV सेंटर्स हैं उनको ART सेंटर्स कहते हैं, और यहाँ पे स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। स्क्रीनिंग नॉट जस्ट फॉर HIV बट ऑल्सो फॉर TB, और हर न्यूली डायग्नोज TB पेशेंट में HIV की स्क्रीनिंग। अब ये रिकमेंडेशंस हैं कि क्योंकि HIV बढ़ रहा है पाकिस्तान में, सो TB के मरीजों के लिए तो जरूरी है कि हर न्यूली डायग्नोज TB के मरीज की HIV स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो हामला खवातीन जो एंटीनेटल क्लिनिक्स पे जाती हैं अपने मुआयने के लिए और अपनी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी भी HIV स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि इन मदर्स में अगर HIV स्क्रीनिंग की वजह से HIV डिटेक्ट हो जाता है तो इसकी इम्प्लीकेशंस उनकी अपनी सेहत के लिए है, उनके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए, क्योंकि मदर टू चाइल्ड HIV के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सकता है और आप एक बच्चे को एक बड़ी मूजी मर्ज से बचा सकते हैं सिंपली बाय इंस्टीट्यूटिंग दिस स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी। फिर हर उस मरीज की HIV स्क्रीनिंग होनी चाहिए जो किसी भी क्रॉनिक बीमारी के साथ आता है, जी मर्ज ठीक ही नहीं हो रहा, और जब मुआयना करते हैं तो आपको पता चलता है कि ओरल थ्रश भी है और मरीज का वजन कम होता ही चला जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनमें HIV सस्पेक्ट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है जिसके फैलाव के कई तरीके हैं। सो आप ये जज नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का मरीज है या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है तो इसमें HIV होगा और दूसरे में नहीं होगा। नहीं, इस तरह नहीं सोचना है। जिस तरह TB हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, उसी तरह HIV भी हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और हर एज ग्रुप के मरीज को इन्फेक्ट कर सकती है। सो टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है, और टेस्टिंग की वजह से आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप इलाज जल्दी शुरू कर सकते हैं, और जब इलाज जल्दी शुरू होता है तो आप HIV के मरीज को एक मौका देते हैं कि वो नियरली नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, और नियरली नॉर्मल के अंदर शादी करना, बच्चे होना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। सो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए या नियरली नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए HIV की ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द शुरू करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में, बल्कि और ममालिक में भी, लेकिन ख़ासतौर पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम TB के लिए स्क्रीन करें, हेपेटाइटिस C और B वायरस के लिए स्क्रीन करें, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लीकेशंस हैं इनकी। HCV और HIV दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही है, रिस्क फैक्टर्स एक ही हैं। सो हर मरीज को हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B वायरस के लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए, और हर HIV पॉजिटिव पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए, और इसमें एक आसान तरीन टेस्ट है VDRL। तो सिफिलिस के लिए ज़रूर स्क्रीन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो सेक्सुअली अक्वायर करते हैं इन्फेक्शन, वो सिर्फ HIV ही नहीं और दूसरी बीमारियां भी अक्वायर कर लेते हैं, खासतौर पे अगर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के साथ उनका कांटेक्ट हुआ हो तो। सो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो ज़रूर जहन में रखने चाहिए। सो हमें पाकिस्तान में HIV के इंक्रीज और फैलाव के रीजंस पता हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस एपिडेमिक को कैसे रोका जाए और कैसे हाई क्वालिटी सर्विसेज इंश्योर की जाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी इन्फेक्शन अक्वायर कर लिया। तो ये हम सब के सोचने की बात है। तो इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करती हूँ। आपको सिर्फ रिमाइंड कराऊंगी कि पाकिस्तान में HIV जो है अब भी कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसकी मेन वजूहात जो है पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, शेयरिंग और रीयूज ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज particularly amongst those who inject drugs, males who have sex with males,
ट्रांसजेंडर्स एंड सेक्स वर्कर्स इन जनरल। ब्रिज पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज पॉपुलेशन वो है जो इनकी पॉपुलेशन से और जनरल पॉपुलेशन से कांटेक्ट में आते हैं। डिजीज को जहन में रख के उसे रिकग्नाइज करना, उसके लिए स्क्रीन करना बेहद जरूरी है। और जब ये तमाम स्टेप्स हो गए तो आपने केस को नोटिफाई करना है टू योर प्रोविंशियल और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ताकि हर मरीज को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे शुरू कराया जा सके, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है और ये मरीजों को अलाउ करती है कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बुशरा। आई होप कि आप सबने बहुत गौर से इसको सुना होगा और बहुत ही इनलाइटनिंग प्रेजेंटेशन थी। अब आपसे रिक्वेस्ट है, एक पोस्ट टेस्ट का लिंक आपसे शेयर किया गया है आशिफा ने, तो काइंडली इसको फिल कर दीजिए। हम ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स देंगे इसको फिल करने के लिए, और इन द मीन टाइम अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट में उसको पेस्ट कर दें ताकि हम आपको आंसर कर दें। थैंक यू। जी, अब कुछ क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं डॉक्टर बुशरा। एक तो डॉक्टर समिया की तरफ से है, हाउ कैन वी वर्क विद यू। चैट देखते ना, आप सबसे कहते हैं अपने कैमरास ऑन कर लें और आप इसको इस तरह कर लें ताकि हम चलिए। ओके, ठीक है। आप काइंडली अगर सब कैमरा ऑन कर लेंगे तो हम आप सबकी पिक्चर भी साथ ही ले लेंगे, जो कि हमारे रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। सब में से सब नजर की। काइंडली सब कैमरास अपना ऑन कर लें। और आगे पिक्चर ले। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर समिया की तरफ से क्वेश्चन है, हाउ कैन वी वर्क विद यू डॉक्टर बुशरा। सो इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप डिपेंड करता है कि किस शहर में है, सो अपने हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलके हमसे रब्ता करें। अगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अंडर आते हैं तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन इज ऑलरेडी वर्किंग विद अस। आप रीच आउट उनको करें एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। दूसरा ये है कि अगर आप HIV सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं तो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि MMIDSP के मेंबर बन जाएं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान।
क्योंकि हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं टीचिंग ट्रेनिंग की, और हम एनकरेज करेंगे कि यू बिकम पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, और हम फिर आपको अपनी इसमें ट्रेनिंग सेशंस के अंदर एंगेज कर लेंगे, एंड यू हेल्प अस इन रीचिंग आउट पीपल। जी, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है अल्ताफ, डॉक्टर अल्ताफ अहमद, व्हाई इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल इज नॉट येट इंक्लूडेड इन नर्सिंग और मेडिकल करिकुलम? जी डॉक्टर अल्ताफ, ये सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ, तो परहैप्स यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। इनको अनम्यूट करें डॉक्टर अल्ताफ को, अल्ताफ से जवाब लीजिए। जी किरण, चेक कर लीजिए, उनको अनम्यूट कर सकेंगे? डॉक्टर अल्ताफ अहमद। डॉक्टर अल्ताफ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा लीजिएगा जब अनम्यूट हो जाते हैं, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्ताफ साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं खुद। मैं कोशिश, यस, इज इट ओके नाउ? यस, अब आप सुन सकते हो? कैन यू हियर मी नाउ? यस। अच्छा, so I'm Dr. Altaf. I'm a medical microbiologist in Pakistan Kidney and Liver Institute. IDSP या MMIDSP का मैं पहले प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और मैं डायरेक्टर हूँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का। और 3 शोबे थे जिससे मुझे बहुत लगाव था हमेशा से। एक टीबी डायग्नोस्टिक्स, दूसरा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान में जब से मैं देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर बुशरा की भी हर प्रेजेंटेशन में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की बात सुनता हूँ। नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है हमारे सिस्टम में। वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, वी टॉक अबाउट ट्रांसप्लांट, वी टॉक अबाउट ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, एंड यू नेम इट। वो होना चाहिए, गलत नहीं है, वो भी होना चाहिए, लेकिन बेसिक इज मिसिंग। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें हर्ट करती हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है या आउटकम है उसकी बात कोई नहीं करता। अगर कार्डियक सर्जरी का इन्फेक्शन रेट कार्डियोलॉजी के सेंटर में 20% हो, तो आप क्या कर रहे हो? मतलब एक क्लीन सर्जरी में 20% पास इज ओजिंग आउट ऑफ योर चेस्ट। इसी तरह वैप की देख लें, मैं बहुत सारे हॉस्पिटल जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में, nobody dares to talk about their infection rate। या तो उनको पता नहीं है कैसे निकालते हैं या क्या है। अब जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको हमने सही तरह कभी बात बताई नहीं कि हमारा इन्फेक्शन रेट है क्या, और हम कहते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। ये क्या चीज होती है? अभी स्वात में NICU में आउटब्रेक है, बरखुरदेरिया, शिपेशिया, कितने बच्चे मर चुके हैं अब तक। लेकिन ये आइसोलेटेड एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। I cannot do it alone, not at all। कितने हॉस्पिटल्स, कितने इदारों, कितने नर्सिंग के चक्कर लगाए कि खुदा के लिए इसकी अहमियत को समझें और इसको इम्प्लीमेंट करें, वरना हर चीज का आउटकम। मैं पूछता हूँ जी, हमने 3000 ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, मैं कहता हूँ उसमें इन्फेक्शन रेट क्या था? आपने कितनी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, उसका हुआ क्या मरीज के साथ आखिर? मतलब मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी इज लिंक्ड। अब HIV का ये जो बदनाम तरीन वाकया लड़काना, एंड सिमिलरली अदर बहुत सारी चीजें तो हिडन अंडर द कार्पेट। वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हम ऊपर क्या बताएंगे? जब ऊपर नहीं बताएंगे तो उस पर कोई लेजिस्लेशन, कोई चीज, कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग इज सर्वेलेंस। NIH बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट टू लेट। मतलब काश पहले हो जाता, खैर अभी भी है तो बहुत अच्छा है। अब डाटा हमने जमा कर लिया या डाटा जमा कर रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। वी लैक इम्प्लीमेंटेशन, और बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। मतलब बड़ी बात तो नहीं है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही प्रोफेसर हैं, हमारे ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ID के लोग हैं, जिनको हैंड वॉशिंग के लिए बोलो तो बुरा मान जाते हैं। उनका हैंड हाइजीन कंप्लायंस 60-70% से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम इतना देखा मैंने।
हमारे आईसीयू के स्पेशलिस्ट, हमारे प्रोफेसर, सब बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात है अपने आप से शुरू करो और फिर दूसरों को नसीहत करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, सही पिक्चर नहीं बताएंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होगा। इतनी कोशिश करते हैं अवेयरनेस करने की, ये वेबिनार भी इसी तरह का एक लिंक है, शुक्र है कि इसकी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आजकल। सो इसको इम्प्लीमेंट करना है, वट एवर यू लर्न यू हैव टू इम्प्लीमेंट। कोई बड़ी साइंस नहीं है, जहां जहां हमने काम किया अब लोगों को एहसास हो रहा है हाँ जी ये मिसिंग लिंक है, और इसी पे सारी चीजें। मैं यही कहूंगा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस एट ऑल लेवल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल। जी बुशरा। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर बुशरा के मोहम्मद अकराम मोगेरी की तरफ से कि इफ अ पेशेंट इन्फेक्टेड विद VDRL, क्या इस पेशेंट को HIV हो सकता है? VDRL जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है सिफिलिस के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और स्पेसिफिसिटी कम होती है। यानी कि आपकी कोशिश ये होती है कि आप इन्फेक्शन को पिक कर लें, और जब वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ज्यादातर टेस्ट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसे किसी और स्पेसिफिक टेस्ट से कंफर्म किया जाए, क्योंकि VDRL फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और अब हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनका फॉल्स पॉजिटिव VDRL होता है। लेकिन बहरहाल हम पॉजिटिव VDRL की बात करते हैं जो कि सिफिलिस इंडिकेट करता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी को एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो तो उसे जितने भी डिटेक्टेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनके लिए स्क्रीन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम होता है और एक से ज्यादा जरासीम जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एक साथ। फॉर इंस्टेंस क्लेमिडिया या इवन HIV के बारे में ये मशहूर है कि जिनको गोनोरिया होता है उनमें ज्यादा आसानी से HIV ट्रांसमिट हो जाता है, और जिनको लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम हो या इवन सिफिलिस हो उनको ज्यादा आसानी से HIV ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि स्किन ब्रीच हुई भी होती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिन जरासीम का एक सा है वो एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। सो इस प्रिंसिपल को जहन में रखना चाहिए, इसीलिए स्क्रीनिंग ऑफ HIV पेशेंट्स फॉर अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि ज्यादातर आर ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। सो ये अपॉर्चुनिटी आप अपने पेशेंट को जरूर दें कि उसकी अगर कोई चीज हिडन है या मिस हो गई है तो उसको डायग्नोज करके उसका सही इलाज किया जाए। जी थैंक यू। इसके अलावा 2 और क्वेश्चंस भी हैं। ये ओप्पो के नाम से आ रहा है, शायद मेंशन नहीं है नेम। सो बट द क्वेश्चन है कि symptoms differ in women and men and how to do counseling with the people dealing with HIV. सो सिम्टम्स तो डिफर नहीं करते मेन एंड वुमेन में, क्योंकि इनिशियल डेज के अंदर जो अक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम है वो भी एक ही सा होता है, बुखार होता है, लिम्फ नोड्स बढ़ते हैं, हल्का सा रैश होता है। उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं होते एक वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हम सब्सिक्वेंट अपने सेशंस के अंदर बहुत तफसील से इन सब चीज़ों की बात करेंगे। कुछ साल गुजर जाने के बाद जब इम्यूनिटी पे असर होना शुरू होता है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी एक ही से होते हैं मर्द और औरतों में। सो सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं है। और दूसरा क्या सवाल था? काउंसलिंग का बेसिक एक प्रिंसिपल बिल्कुल जहन में रखिएगा। काउंसलिंग में जो चीज बताई जाती है वो अगर किसी कोई HIV पॉजिटिव हो तो उसको तरीके से ये बताना होता है कि ये इन्फेक्शन है, डेथ सेंटेंस नहीं है, इससे बचाव के क्या तरीके, मतलब इसको बढ़ने से रोकने के क्या तरीके हैं, दवाइयाँ लेना कितना ज़रूरी है, और रेगुलर फॉलोअप्स और मॉनिटरिंग बेइंतहा ज़रूरी है टू लीड नॉर्मल लाइफ। दूसरा उनको ये बताना होता है कि आप अगर कोई मैरिड है तो कि अपने स्पाउस को उस मर्ज से कैसे बचाया जा सके, और बचाने से पहले ये कि स्पाउस की स्क्रीनिंग होना बेहद ज़रूरी होता है। तो फैमिली में ये एटलीस्ट स्पाउस को डिस्क्लोज करना कि भाई ये इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है और इसकी स्क्रीनिंग कराना क्यों ज़रूरी है, और फिर उसकी सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ऐसी जगह बैठ के मरीज से बात करें जहाँ पे और लोग मौजूद ना हो, किसी तक की आवाज़ नहीं जानी चाहिए कि बात क्या हो रही है। दूसरी ये कि काउंसलिंग और क्लिनिक्स दोनों ऐसे होने चाहिए
जो आइडेंटिफाइबल ना हो कि यहाँ HIV के मरीज आ रहे हैं। ये बेहद जरूरी है, वरना स्टिग्मा हो जाता है, लोगों को दूर से पता चल जाता है कि अच्छा फलां शख्स उस क्लिनिक जा रहा है तो वो क्लिनिक तो HIV का है। सो क्लिनिक्स के लिए बेहद जरूरी है कि अनडिफरेंशिएटेड उन्हें रखा जाए, वहां पे कोई पोस्टर बैनर ना लगाया जाए, ना ये ऐलान किया जाए कि फला फला HIV का पेशेंट है और वो आ जाए डॉक्टर से मिलने। सो स्टिग्मेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस से इसका ताल्लुक है, और दूसरा ये कि क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबको मालूम होता है, तो जिस बेचारे को गलत ब्लड लगने या सिरिंज रीयूज से भी लगा है, उस पर भी ये स्टिग्मा लग जाता है कि उनको पता नहीं कैसे ये इन्फेक्शन लगा है। तो उसमें स्टिग्मेटाइजेशन से बचना है, अनडिफरेंशिएटेड रखना है क्लिनिक को, ऐलान करके किसी को भी नहीं बताना कि जी फला फला HIV का मरीज है। काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ऐसी जगह बैठ के मरीज से बात करनी है जहां कोई और ये बातें ना सुन सके। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। उससे भी तो पूछ वो तो उसकी अपनी जाती रहा है ना, वो अपनी जाती रहा थोड़ी दे सकता है। अपन अपनी राय दे रहे हैं। Kiran wants to unmute himself. Kiran. जी आवाज आ रही है सबको? हमने इवैल्यूएशन भी शेयर की है, काइंडली उसको भी फिल कर दीजिए। क्या मजबूरी आवाज आ रही है? हाँ ये मजबूरी क्या बोलते हैं जो है वो बेहतरीन है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब मेरी? मैं क्लियर करता हूँ। जी आवाज आ रही है? We can hear you. जी अस्सलाम वालेकुम। नो Omar Saab, if you can ask the question in the chat, we can't hear you. हाँ जी, पोस्ट टेस्ट काइंडली आपने फिल किया है। कितने रिस्पॉन्सेज आए? 21 रिस्पॉन्सेज आए हैं काइंडली, 59 पार्टिसिपेंट्स हैं और इवैल्यूएशन सिर्फ 8 आई हैं। काइंडली वो भी फिल कर दीजिए, ये हमारे लिए बड़े यूजफुल होगा आपके रिस्पॉन्सेज। जी Dr. Razia, the time is almost over. Should we wrap up? जी अभी 22 पोस्ट टेस्ट एंड 9 इवैल्यूएशन रिसीव हुई हैं, काइंडली वो फिल कर दीजिए।
जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक के लिंक्स जो हैं वो ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे। अभी 29 हुए हैं आई थिंक पोस्ट टेस्ट। सो ओवर टू Kiran and then Dr. Bushra for final remarks. Thank you very much, Dr. Bushra, and all the participants. And we are very grateful and thankful for participating. I would like to thank Dr. Asad Ali Chaudhary, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, Harith for IT support, and Salaman. And Allah Hafiz from my side, and over to Dr. Bushra. Thank you very much. I hope कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स एड्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को अपडेट करा दें, रिफ्रेश करा दें, इंफॉर्मेशन दे दें जो आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में हेल्प करे, और हम केस प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड करेंगे अगली दफ़ा से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अल्ताफ़ की जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। MMIDSP में एक्चुअली हमारा प्लान ये है कि चैप्टर्स या सब सेक्शंस बनाए जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको सीरियसली लेने की और जिनसे डील करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको हमें बार बार एड्रेस करने की ज़रूरत है और हर एक को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। सो फॉर HIV आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, आई एम ग्रेटफुल टू पारसा, आई एम ग्रेटफुल टू अपना मेरिट जिन्होंने हमारे साथ मिलके कंटेंट डेवलप किया है, और एक वेबिनार सीरीज अपना की कंप्लीट भी हो चुकी है। सो हम ये सेशंस प्रेजेंट करते रहेंगे एंड वी विल मेक देम एज यूजर फ्रेंडली एज पॉसिबल। और आप लोगों को हम रीच आउट करेंगे कि अपने डिफिकल्ट केसेस हमें भेजें ताकि वो केस प्रेजेंटेशंस हम अपनी इसमें सेशंस में इंक्लूड कर लें, ताकि लार्जर ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम्स डिस्कस हो तो सबका फायदा होगा उसमें। सो इम्पैक्ट शुड बी ऑन मेकिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस ईजी and up to a certain quality. ठीक है, चलें। Thank you very much. Thank you and Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Uzair, you can please call off the meeting. Sure, ma'am.